Good morning, students. In the previous video, we discussed about the application of biotechnology in the field of agriculture. So in this video, we will discuss the application of biotechnology in the field of medicine. Okay. So in the field of medicine, RTT has a great impact. So recombinant DNA technology has a great impact in the case of medicine or in the field of medicine. So there are about 30 therapeutics, or there are about 30 medicines that are formed by recombinant DNA technology process, or the 30 recombinant therapeutics has been used worldwide, and there are 12 medicines that is being used in India. So total 30 therapeutics जोटा कि worldwide use होची RDT process जोटा formation होची ता भितरु 12 medicine जोटा कि use होची in India. Okay. So let's take the first example of application of biotechnology in medicine. The first example is genetically engineered insulin. Okay. So what is genetically engineered insulin? So genetically engineered insulin जाने पूर्व first जानो what is insulin? Insulin टा secretion में कोडू from the beta cell of islets of Langerhans in pancreas. तो pancreas रो islets of Langerhans रो जो beta cell अच्छी beta cell लू synthesize हुए insulin synthesize हुए. So in case of diabetic patients, जो मैंने diabetic patient था दी समानों कैसे insulin ना synthesize टा कम हुए, so that समानों कौन करे आगु पड़े बाहरों insulin injection ने आगु पड़े. So that insulin injection is the genetically engineered insulin. So normal गुड़े insulin ने कौन था है तरह structure टा कौन structure of insulin. The normal structure था है कौन there are two amino acid chains. There are two amino acid chains. So one is A chain टा formation है तो कोतरे 21 amino acid रे. B chain टा formation है तो 30 amino acid रे. Okay, sorry, amino acid chain or polypeptide chain. So there are two polypeptide chain. A chain consists of 21 amino acid and B chain consists of 30 amino acid. So इतने insulin टा synthesize हुए और insulin टा secretion में beta cell that is secreted in the form of proinsulin. So इतने synthesis हुए proinsulin form रे synthesis हुए then convert हुए mature insulin ने. तो proinsulin ना कौन था? There is one more chain, C chain. The C chain consists of 33 amino acid. तो दीटा चेन मैच्योर इंसुलिन न थाए ए चेन आउ बी चेन टा मैच्योर इंसुलिन न थिबो जोटा कि 21 अमीनो एसिड आउ 30 अमीनो एसिड रे रहते. बट प्रो इंसुलिन जोटा कि स्टार्टिंग रु सिक्रेशन हुए प्रो इंसुलिन न कोन थाए तीनटा चेन थाए ए चेन बी चेन आउ सी चेन न कोन थिबो 33 अमीनो एसिड थाए. सो दिस इज द ए चेन, इफ दिस इज द ए चेन and this is the B chain, so there is a C chain. This is the connecting chain or linking chain. So this is the C chain. तो तीनटा chain है pro insulin ने. One is A chain, one is B chain, and connecting the both there is a C chain. C chain ना only function है कौन? They bring समाने कौन कर दी? They bring closer A chain and B chain. से कौन करे A chain और B chain को closer आने कौन करे पाखो को आने so that आ भीतर कौन हो डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में. तो दी A chain अच्छी फर्स्ट ला A chain then B chain तो आ भीतर रहला गोटे कौन C chain ना फंक्शन ला कौन ए दिटा को पाखो को आनिबो so that आ भीतर कौन हो A chain आउ B chain भीतर डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हुए आ एटा कन्वर्ट हुए कोथरे मैच्योर इंसुलिन. तो C chain नो ओनली फंक्शन ला दिटा को क्लोजर आने. ओके. तो साइंटिस्ट माने दिस इज द स्ट्रक्चर. दीटा चेन होइला ए चेन और बी चेन. ए चेन 21 अमीनो एसिड, बी चेन टा 30 अमीनो एसिड रे गोटे लिंकिंग चेन होइला और कनेक्टिंग चेन दैट इज सी चेन. बट सी चेन इज ओनली प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन.
प्रो इन्सुलिन फॉर्म रे सी चेन प्रेजेंट हो जोटा कि कौन करे ताको कनेक्ट करे जो मैच्योर इन्सुलिन कन्वर्ट हम सी चेनटा दीटा को क्लोज आणला दीटा को पाख को नहीं आसला दीटा को भितर डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली सी चेनटा ओमिट हो तो सी चेन फंक्शन लगे कि से दिजन जाक पाख को आने और डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करारे हेल्प करे तो साइंटिस्ट मैंने कले कौन ए चेन सिंथेसाइजिंग जीन बी चेन सिंथेसाइजिंग जीन दीटा को जीन को सेपरेट एक्सट्राक्ट कले ताकू नहीं कौन कले ई कोलाई रे ट्रांसप्लांट कले से कौन है दीटा को चेन सेपरेटली फॉर्मेशन है किछिटा ए कोलाई रे ए चेन फॉर्मेशन है किछिटा बी ई कोलाई रे बी चेन फॉर्मेशन है देन से माने कौन कले अंडर ए पर्टिकुलर कंडीशन ए चेन और बी चेन को गोटे पर्टिकुलर कंडीशन में रखिले सो दैट कौन है से जन को फॉर्मेशन करे डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन ए चेन एंड बी चेन so the insulin synthesizing gene is present in chromosome number 11 okay ए जिनसरा मन रखो इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन टा कोडी प्रेजेंट है इन केस ऑफ इन ह्यूमन तो इन क्रोमोसोम नंबर 11 ने इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन प्रेजेंट हो तो स्ट्रक्चर गला तो साइंटिस्ट माने कहले कोन द एक्सट्रैक्ट ए चेन सिंथेसाइजिंग gene for A or gene for A chain synthesizing gene, then there is a gene for B chain. दीटा को जीन को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करले फ्रॉम क्रोमोसोम नंबर 11 ओके सो ए चेन को से कौन कले ए चेन सिंथेसाइजिंग जीन रहिला ए चेन सिंथेसाइजिंग जीन नो फॉर्मेशन हो कोन एमआरएनए टा कन्वर्ट हो कोतरे cDNA रे mRNA synthesize करे cDNA in the presence of reverse transcriptase so reverse transcriptase enzyme रा starting ru gochi mRNA रे formation होबो cDNA formation हुए और complementary DNA formation हुए that is in the presence of enzyme reverse transcriptase so gene हला gene by the process of transcription mRNA formation है mRNA रू cDNA formation होबो using the enzyme reverse transcriptase so the cDNA जो cDNA रहला cDNA को साना कौन कले E. coli रो plasmid रे जॉइन कले ओके plasmid is a vector तो plasmid रे जॉइन कले काबू the cDNA for synthesizing the A chain ओके तो से cDNA टा को एक्सट्रैक्ट कले ताकू ने की जॉइन कले कोतरे वेक्टर plasmid रे जॉइन कले तो plasmid कारो E. coli रो plasmid फर्स्ट E. coli रो plasmid को एक्सट्रैक्ट कले देन कौन कले plasmid रे जॉइन कले देन plasmid टा को ट्रांसफर कर दिले कोडी की इन E. coli ओके तो E. coli रे पुणी कौन कले E. coli रे ताकू ने की इंसर्ट कर दिले सो E. coli इज द होस्ट तो फर्स्ट प्रोसेस है गला जीन सिंथेसाइजिंग ए चेन ताकू फर्स्ट कौन कले एक्सट्रैक्ट कले से थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस रा कहला mRNA फॉर्मेशन होमो mRNA रू cDNA फॉर्मेशन हुए by using the enzyme reverse transcriptase cDNA को साना कौन करले E. coli रो plasmid रे जॉइन कले तो कट कले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रे देन ताकू जॉइन कले कुतरे plasmid of E. coli then that plasmid is transferred into the host cell that is E. coli okay तो ए जो एथरे जति रहिला ए जो E. coli रहिला सेत्रु फॉर्मेशन ऑफ कोन A chain फॉर्मेशन ऑफ सेम जिंस कले कोतरे फॉर B chain सिंथेसाइजिंग जीन नु सेम mRNA बाहर कले mRNA फॉर्मेशन हला कोन cDNA फॉर्मेशन हला देन ताकू कोन कले नै कि E. coli रो प्लाज्मिड रे जॉइन कले ओके सो तो ए जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड रहिला को नै कि ट्रांसफर करे कोथरे कि आउ किछिटा E. coli रे ट्रांसफर करे सो एठी A chain सिंथेसाइज हला ए जो E. coli रहला इथरे कोन सिंथेसाइज होबो B chain सिंथेसाइज होबो तेतले A chain सिंथेसाइज हेगला एठी B chain सिंथेसाइज हेगला एठी तो एठू एक्सट्रैक्ट कले A chain को एठू एक्सट्रैक्ट कले B chain को आकु गोटे पर्टिकुलर कंडीशन ने रखिले सो दैट A chain और B chain क्लोजर आसीबो आ ता भीतर फॉर्मेशन होबो कोन डाइसल्फाइड बॉन्ड देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर इंसुलिन ओके तो सिंपल जिंस कले कोन से माने A chain सिंथेसाइजिंग जीन को एक्सट्रैक्ट कले देन mRNA फॉर्मेशन हला से थ्रू cDNA फॉर्मेशन हला तक किछ ताकू ने कि ट्रांसफर कले कोतरे प्लाज्मिड रे ट्रांसफर कले देन प्लाज्मिड टा को इंट्रोड्यूस करले कोतरे होस्ट दैट इज E. coli रे सेम जिंस कले का पाई B chain सिंथेसाइजिंग जीन पाई B chain सिंथेसाइजिंग जीन को एक्सट्रैक्ट कले ताकू ने कि इंट्रोड्यूस कले कोतरे E. coli रो प्लाज्मिड रे देन that rDNA is transferred into the
इकोलाई सेपरेट इकोलाई फॉर्मेशन है ए चेन आउ किछिटा सेपरेट इकोलाई फॉर्मेशन है बी चेन दीटा को इकोलाई कौन कराला ताकू एक्सट्रैक्ट कराला देन ताकू गोटे पर्टिकुलर कंडीशन रे रखाला सो दैट एटी को हम मैच्योर इंसुलिन फॉर्मेशन हम एंड दैट इंसुलिन is given in the form of injection. Okay, so this is the procedure of forming, or this is the procedure of creating the genetically engineered insulin. So procedure है कौन first procedure E. coli रू कहा को बाहर कराला plasmid को बाहर कराला human नु कहा को नहीं कैसला gene for synthesizing A and gene for synthesizing B chain. Okay, gene extract कराला E. coli रू plasmid को extract कराला जीन नु फॉर्मेशन कराला कौन सीडीएनए फॉर्मेशन करागला ताकू नहीं इंट्रोड्यूस कराला अलग सेम जिनस बी चेन बाय भी कराला बी चेन सिंथेसाइजिंग जिन को किछटा अलग इक्वल रखागला नहीं कि ताकू इंट्रोड्यूस करागला तो ए थ्रू ए चेन बाहरला से थ्रू बी चेन बाहरला ताकू गोटे कंडीशन रखले देन फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन. ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फॉर्मिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन. सो the first genetically engineered insulin was created by first genetically engineered insulin was created by a company, a pharmaceutical company called Eli Lilly. The pharmaceutical company Eli Lilly से कौन करथिले फॉर्मेशन करथिले the first human insulin or first genetically engineered insulin in 5th July 1983. So 5th July 1983 रे Eli Lilly pharmaceutical company formation करथिला first genetically engineered insulin that is called Humulin. जेतु ह्यूमन जीन यूज करा के फॉर्मेशन कराइला सो दैट कौन कराला ह्यूमुलिन. सेटा एटा को मन को फर्स्ट genetically engineered insulin is called Humulin that is created by a pharmaceutical company called Eli Lilly in 5th July 1983. Then there are some more scientists, Banting and West. Banting and West से मने कौन करथिले they isolated insulin from dog's pancreas. So मैंने कौन करथिले डॉग रो पैनक्रियास रु इंसुलिन को आइसोलेट करथिले बैंटिंग एंड बेस्ट. थर्ड है टीसन synthesized human insulin for first time. For the first time human insulin को synthesize करथिले के टीसन. Then Banting and West कौन करथिले isolated the insulin from dog's pancreas. Then the first genetically engineered insulin or Humulin is formed by Eli Lilly pharmaceutical company. So this is all about the genetically engineered insulin and the first genetically engineered insulin. The second example of application of biotechnology in medicine is gene therapy. So the second example is gene therapy. So what is gene therapy? Replacement of a faulty gene by a regular gene or by a normal gene to cure a disease is called gene therapy. Replacement of a faulty gene. यदि गोटे डिफेक्टिव जीन अच्छे से डिफेक्टिव जीन को गोटे नॉर्मल जीन ने रिप्लेस कराला. गोटे डिफेक्टिव जीन अच्छे ए जगह तो ये जीन टाक कौन कला रिमूव कराला ता जगह से पर्टिकुलर बट नॉर्मल जीन को यदि रिप्लेस कराउची से डिजीज को क्योर कराया देन दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरापी. जीन थेरापी को यूज करावे कौन पाई टू क्योर ए जेनेटिक डिसऑर्डर बाय मैनिपुलेटिंग जीन्स. जदि किसी गोटे जेनेटिकल डिसऑर्डर अच्छी जेनेटिकल डिसऑर्डर ऑब्वियसली जीन जो क्रिएट हुए जीन जो फॉर्म हुए तो कौन कराला जदि से जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर कराया कौन कराला तुमर से फॉल्टी जीन को रिमूव करागला ता जगह गोटे नॉर्मल और हेल्दी जीन को रिप्लेस कराउची. दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड जीन थेरापी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन थेरापी. वन इज germline gene therapy. Second one is
somatic cell gene therapy. तो फर्स्ट है कौन जर्म लाइन जीन थेरापी, सेकेंड है सोमाटिक सेल जीन थेरापी. जर्म लाइन जीन थेरापी कौन करावे जदि जीन थेरापी कराउची इन द स्टेज ऑफ स्पर्म, ओवम और जाइकोट. ओके जदि ए तीन टाक स्टेज रे स्पर्म है, ओवम है, जाइकोट जदि ए टाइम रे कौन कराउची आइडेंटिफाई कराउची कि कोडा फॉल्टी जीन अछि ताकू जदि रिप्लेस कराउची देन दैट इज कॉल्ड एज जर्म लाइन जीन थेरापी. सेकेंड आसला कौन सोमाटिक सेल जीन थेरापी. सोमाटिक सेल जीन थेरापी कौन करावे जदि ओनली सोमाटिक सेल ही जीन टाक कौन कराउची चेंज कराउची और तार रिप्लेस कराउची देन दैट इज कॉल्ड सोमाटिक सेल जीन थेरापी. दुटा जिन हो गला जर्म लाइन जीन थेरापी और सोमाटिक सेल जीन थेरापी. सो एग्जांपल, so what is the example of gene therapy? The first gene therapy was done for the ADA synthesizing gene adenosine deaminase. So this is an enzyme. So this is an enzyme. The adenosine deaminase enzyme synthesizing gene ro first कौन कराइतला gene therapy कराइतला. तो ए enzyme रो function कौन? So in a healthy human being, bone marrow produce B and T cell or B lymphocyte and T lymphocyte. तो normal गोटे healthy human है कौन है? The stem cell present in bone marrow, they forms B cell and T cell in the presence of the enzyme ADA. The ADA enzyme presence रे bone marrow टा formation करे B cell और T cell को. So B cell और T cell कौन? This is the third line of defense. They give the cell mediated immunity. They provide the cell mediated immunity and humoral immunity. So ये दुटा का फंक्शन है से प्रोवाइड करांदी इम्यूनिटी प्रोवाइड करांदी. सो दिस आर द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. तो दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस. बोन मैरो रहा बोन मैरो फॉर्मेशन हुए कौन बी सेल आउ टी सेल फॉर्मेशन हुए जोटा कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करे इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम एडीए. एडीए एंजाइम प्रेजेंस रे बोन मैरो फॉर्मेशन हुए बी सेल एंड टी सेल. तो जदि कौन है एडीए सिंथेसाइजिंग जीन टा डिफेक्ट अच्छे. सो ऑब्वियसली गोटे एंजाइम फॉर्मेशन हो ना कि गोटे पर्टिकुलर जीन थी जो जीन कि से एंजाइम टा फॉर्मेशन होते और से प्रोटीन टा सिंथेसाइज होते. तो यदि एडीए सिंथेसाइजिंग जीन टा डिफेक्ट अच्छे सो जीन दैट प्रोड्यूस एडीए एंजाइम यदि ए जीन टा डिफेक्टिव अच्छी तो ऑब्वियसली कौन हेनी एडीए एंजाइम टा फॉर्मेशन हेनी. एडीए एंजाइम यदि फॉर्मेशन ना बोन मैरोटा कन्वर्ट हेनी कौन बी सेल और टी सेल और स्टेम सेल जोड़ा रहा बोन मैरो से फॉर्मेशन करनी बी सेल और टी सेल को. तो ये जो बी सेल टी सेल फॉर्मेशन ना कौन हम जो इंडिविजुअल टा फॉर्मेशन है और जो इंडिविजुअल टा बर्न होती जीन डिफेक्टिव रे तो से इंडिविजुअल कौन थी that individual will be born with no immune system. तो से individual immune system ही absent थी. That condition is called SCID, SCID, severe combined immunodeficiency. तो ये कंडीशन टा हम केते जदि एडीए सिंथेसाइजिंग जीन टा डिफेक्टिव अच्छी और एब्सेंट अच्छी तो एडीए एंजाइम टा फॉर्मेशन हेनी. एडीए एंजाइम फॉर्मेशन नहेले बोन मैरो बी सेल और टी सेल फॉर्मेशन हेनी और से इंडिविजुअल कौन हम इम्यून सिस्टम ही एब्सेंट थी. इम्यून सिस्टम एब्सेंट अच्छी माने को भी डिजीज हो इजिली हो. ओके तो ये कौन है दैट कंडीशन इज कॉल्ड SCID और सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी. तो जीन थेरापी कराइतला फर्स्ट कार एडीए सिंथेसाइजिंग जीन. तो साइंटिस्ट माने कौन कले और डॉक्टर माने करथिले कौन दे आइसोलेट द लिम्फोसाइट फ्रॉम द बोन मैरो. बोन मैरो कौन कले लिम्फोसाइट को आइसोलेट कले लिम्फोसाइट. देन से कौन कले ए फंक्शनल एडीए सिंथेसाइजिंग जीन गोटे एडीए सिंथेसाइजिंग जीन गोटे फंक्शनल और नॉर्मल एडीए सिंथेसाइजिंग जीन को इंट्रोड्यूस करेले इनसाइड दैट लिम्फोसाइट. तो से लिम्फोसाइट रे एडीए सिंथेसाइजिंग जीन को इंट्रोड्यूस करेले यूजिंग द वेक्टर रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस कहते रेट्रोवायरस इज ए वेक्टर. तो रेट्रोवायरस वेक्टर को यूज करके से कौन कले एडीए सिंथेसाइजिंग जीन को ट्रांसमिट करेले कोटी की लिम्फोसाइट को. सो दैट लिम्फोसाइट is transferred or implanted
in the bone marrow of that patient. तो से patient रो bone marrow ने की introduce करेले कहाँ को lymphocyte that contain the functional ADA synthesizing gene. तो obviously कौन बा ए bone marrow रे formation अब B cell और T cell formation में. But the lifespan of this lymphocyte is very short. Lifespan आरो कौन दियो बहुत short था, so that कौन अब कि B cell और T cell formation में बहुत short period of time में formation में. तो obviously से disease को यदि cure करे रहे then कौन अब ताको regular infusion दरकार. जो इधर lymphocyte that contain ADA synthesizing gene is regularly transferred or regularly transmitted in the bone marrow of that patient. Okay, so patient रो bone marrow regularly infuse करे दरकार. जदि कौन हो जी यंग एज रे और जाइगोट कंडीशन ने कौन करा जदि जर्म लाइन जीन थेरापी हो एथिरे तो जर्म लाइन जीन थेरापी ले मे बी डिजीज टा कंप्लीटली क्योर हो पारे बट जदि कौन हो गोटे पर्टिकुलर एज पर करा हो ट्रांसमिट करा हो देन ताको रेगुलर इनफ्यूजन दरकार. तो द फर्स्ट जो जीन थेरापी और एडीए जीन थेरापी जोटा हेतला का ऊपर इन ए 4-year-old गर्ल चाइल्ड in 1990. The first एटा होतला का ऊपर गोटे 4-year-old girl child that is तारा कौन थिला स्किड थिला और सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी थिला से जोटा कि सफर करथला स्किड रे. तो इन 1990 मतलब ता ऊपर ए जो जीन थेरापीटा परफॉर्म करले. सो दिस इज all about gene therapy. Then there is one more example in application of biotechnology, that is the formation of vaccines. So vaccines, what are vaccines? These are the weak but live but weak vaccines. So vaccines are gonna, these are dead agents of a disease. तो वैक्सीन टा कौन है गोटे डेड एजेंट्स ऑफ ए डिजीज लाइव बट एट आइदर वीक हो कि कंप्लीटली डेड है अटेन्यूटेड डेड और अटेन्यूएटेड. डेड और अटेन्यूएटेड मीन्स कौन वीक लाइव बट वीक. तो यदि कौन गोटे वीक पैथोजेन और वीक एजेंट ऑफ डिजीज को इंट्रोड्यूस करावे गोटे नॉर्मल सेल रे और गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग रे दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी for a short period time or forever. तो यदि कौन करा गोटे लाइव बट वीक एजेंट ऑफ पैथोजेन रहा कि गोटे डिजीज क्रिएटिंग एजेंट अच्छी ताकू जदि कौन करा नहीं कि इंट्रोड्यूस करा इनसाइड ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. तो ऑब्वियसली से कौन करा एंटीजेन फॉर्मेशन करो ता बॉडी रे. तो एंटीजेन फॉर्मेशन कले ताकू कौन करा डिस्ट्रॉय करा फॉर्मेशन हम कोड़ा एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुए इनसाइड द बॉडी. सिंपली बोलते कौन एंटीजेन फॉर्मेशन हो को थ्रू डेड एजेंट ऑफ डिजीज आइदर डेड और अटेन्यूएटेड मीन्स कौन लाइफ बट वीक बंची थी बट वीक थी. तो से कौन करा ट्रांसमिट करा इनसाइड ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग टू प्रोवाइड इम्यूनिटी. हेल्दी ह्यूमन बीइंग रे इंट्रोड्यूस हेले कौन हम से एंटीजेन फॉर्मेशन करे. एंटीजेन को डिफेंड कराई बॉडी रे कौन फॉर्मेशन हम तार एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुए. तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हेले कौन एंटीजेन टा डिस्ट्रॉय हो. ओके तो दी फर्दर सेम एंटीजेन और फर्दर सेम एजेंट जदि कौन होची अटैक करछि देन ऑलरेडी इटा कौन होइतिबो एंटीबॉडी टा फॉर्मेशन हेकिथिबो सो दैट ताकू डिफेंड करबो सो दैट आपको फर्दर ताकू केबे हेले भी से डिजीज टा होबोनी. सो दिस इज द वैक्सीन व्हेन live but weak or dead agents of disease is transferred into a normal human being to provide immunity. तो वैक्सीन ने कहला गोटे फर्स्ट डिसएडवांटेजेस जो कौन मे बी सम ऑफ द एजेंट्स आर नॉट दैट वीक. तो कौन किछिटा एजेंट एमती था जोटा कि कंप्लीटली वीक नथिबे सो दैट कौन हम से डिजीज को माने एंटीजेनटा कौन हम एंटीबॉडी फॉर्मेशन हवा आगुरी से डिजीज को अधिका इनक्रीज कराई दियंती. तो सेथि कौन करा हुए बाय द प्रोसेस ऑफ आरडीटी सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स are produced. Second generation vaccines are produced. तो second generation vaccine actually कौन second generation vaccine produce होती by RDT process recombinant DNA technology formation होता है. तो तार advantage है कौन से माने कौन करी पारंती से कौन more effective than the fast generation vaccine. Normally fast generation vaccine अपेक्षा से more effective थांती और तांकर side effect
बहुत कम थाए. Then there are also third generation vaccines. Third generation vaccine कौन synthesized vaccine. Synthesized vaccine. तो synthesized vaccine आइदर को गोटे पॉलीपेप्टाइड रहला कि किसी भी गोटे एंजाइम नु कौन कराई तो synthesized vaccine को फॉर्मेशन कराते हैं. That is called third generation vaccine. Then there is edible vaccine. Edible vaccine कौन है? Edible vaccine डाला जदि antigen synthesizing antigen synthesizing एजेंट जो एजेंट रहा और डिजीज क्रिएटिंग एजेंट अच्छी से एजेंट रु एंटीजेन सिंथेसाइजिंग जीन टा कौन करा स्टार्ट कराला ताको इंट्रोड्यूस कराइबो किछि गोटे प्लांट रे. तो प्लांट रे ऑब्वियसली कम से एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट हो से प्लांट रो फ्रूट रे एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट हो. तो से फ्रूट टा कोते कम गोटे ह्यूमन माने गोटे कोन खाइबा हमें सेटा कम बॉडी रे एंटीजेनिक प्रोटीन प्रेजेंट रहला ताको डिफेंड करा पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो. सो दैट वैक्सीन इज कॉल्ड एडिबल vaccine. So these are the examples of by the process of RDT, second generation vaccines are produced, third generation vaccines are produced, or the synthesized vaccines are produced. Then by the process of RDT, edible vaccines are produced. Edible vaccine ने कौन करावे? Gene responsible for synthesizing antigenic protein. एंटीजेनिक प्रोटीन तो से जीन को कौन कराला नहीं कि इंट्रोड्यूस कराबो प्लांट रे सो दैट प्लांट रो फ्रूट रे कौन रहबो प्रेजेंट रहबो दैट एंटीजेनिक प्रोटीन. देन से फ्रूट को एतला नॉर्मली हमें खाइबा ऑब्वियसली कौन हो बॉडी रे एंटीजेनिक प्रोटीन गला ताकू डिफेंड करा पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन होबो. देन से डिजीज बाय इम्यूनिटी प्रेजेंट रहबो कोतरे बॉडी रे प्रेजेंट रहबो. सो एडिबल वैक्सीन दा कोको प्लांट रे यूज करबो. टमाटो होला टमाटो हो बनाना हो तो ये प्लांट रे कौन कराई परबो इंट्रोड्यूस कराइबो एडिबल वैक्सीन. और दिस प्लांट्स कैन बी यूज्ड फॉर एडिबल वैक्सीन. Okay, the term vaccine was first introduced by Edward Jenner. Okay, so this is all about vaccines. Vaccines कौन बाय यूज हुए इम्यूनिटी प्रोवाइड करा पे बॉडी को वैक्सीन प्रोड्यूस करावे. जेहेतु फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन ना डिसएडवांटेज है कौन जदि वीक पैथोजेन अच्छी बट से सेति वीक नहीं देन कौन हम बॉडी से डिजीज को इनक्रीज करे पारे. तो ताकू तार से प्रॉब्लम को सॉल्व करापे यूज कराला कौन सेकेंड जनरेशन वैक्सीन दैट इज मोर इफेक्टिव दैन द फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन. देन तार साइड इफेक्ट भी बहुत कम था. देन थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स आर सिंथेसाइज्ड वैक्सीन्स. देन लास्ट ला कौन एडिबल वैक्सीन. एडिबल वैक्सीन टा कौन पारबो प्लांट रे इंट्रोड्यूस कराय पारबो एंटीजेनिक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन को. सो दिस इज ऑल अबाउट the application of biotechnology in the field of medicine. Formation of insulin, genetically engineered insulin. Then the second one is gene therapy, and the third one is the production of vaccine. Second generation vaccine, edible vaccine, and third generation vaccine. So in the next video or in the next class we will discuss about the transgenic animals. That will be the last part of applications in biotechnology. Thank you.